Hello friends, welcome to the Spectra Core Academy. Today we will be discussing how to file our application for the custom broker licensing examination to be held in March 2022. Custom broker licensing examination held for applying and getting the custom broker license. Custom broker license is used for import and export, clearance services, and consultancy services. Now, this examination can be given by the professional degree holders like MBA, CACS, LLM, and for the industry persons holding G card. Now, for this application is being invited from National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Faridabad located. Now, this notice was released on 26 August 2021. Based on this notice, all the customs commissionerate based at Delhi, Chennai, Bangalore, Mundra, Vijayawada, Tuticorin, and several other locations have released their respective notifications for inviting the application for the custom broker license. Now we will be going through the original notice given by NACE in Faridabad, and thereafter we look into the notice issued by the Delhi Commissionerate. Now for this notice, if we look into each of the points, it is necessary, ये जरूरी है कि हम इन दोनों नोटिसेस को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, आपके रिस्पेक्टिव कमिश्नरेट में जो नोटिस निकल रहा है उसे आप समझें, बिकॉज इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस एंड दोज एप्लीकेशंस जो प्रॉपरली फिल्ड अप नहीं होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. In 2018, around 60% of the applications were rejected, and only 40% of the candidates could make up to the examination. Things are getting tough slowly and the entry barriers are being applied. So you have to be careful and understand the process to file your application. If we go through each of the points, this notice that is released on 26th August says that applications are invited from Indian citizens to appear in online written examination for issuance of license to act as custom broker under Custom Broker Licensing Regulation 2018 as amended. Copy of the regulation is available at www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in. Original notification was given in 2018. Thereafter, it was amended in 2019 with few changes. One of the most important changes was that earlier the licensing examinations were being conducted by DGPM, Directorate General of Performance Management, and thereafter in 2019 it was being conducted by NACIN, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. The second point says that the complete application is to be submitted in person or by registered or speed post in Form A available in CBLR 2018, along with 2 passport size photos and self-attested documents on citizenship like Aadhaar, passport or voter card. Educational qualifications, financial viability, mobile number and email ID for contact purposes, and other requirements, along with a prescribed fee of ₹500 to the Principal Commissioner, Commissioner of Customs Preventive, having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business. Basically, you have to submit your application in your respective commissionerate where you are working. ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये जो विंडो है that is from 18th October 2021 to 18th November 2021 till 6 p.m. Now people are filing the applications and they are facing several doubts कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या फॉर्मेट है उनका. उन्हीं सब टॉपिक्स के लिए हमने ये वीडियो लिया है and we will be discussing these topics. It further says that an application sent by post in case received after last date shall not be entertained. So ये जो point है इनको आप properly note करिए कि आप better रहेगा preferably कि इनको in person in hand आप submit करिए, because if you are able to submit, collect all the documents and anyhow due to some reason or the other
you are able to submit it on the last date. So don't send it by post, you should submit it in hand, in person. Before submitting, point number 3 says, before submitting the application, applicant should ensure the completeness of the application. Incomplete application shall be summarily rejected. तो यही हुआ था 2018 में, अराउंड 60% ऑफ द एप्लीकेशंस गॉट रिजेक्टेड। और होता भी है, हर साल जो लिस्ट निकलती है वो कुछ कैंडिडेट्स की निकलती है एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस गेट रिजेक्टेड। Point number 4 says syllabus of the written examination will be as per regulation 6 sub regulation 7 of CBLR 2018। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Point number 5 says that name of the applicant found eligible to appear in examination will be displayed on the notice board and or website of the respective commissionerate on 29th November 2021। तो इस डेट को आप अपने respective commissionerate में देख सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है, then you will be given the center to give the exam। Point number 6 is information regarding roll number, admit card and the examination venue will be made available on the website of CBIC and NACIN under the icon of GSTP CBLR exam, and admit card will be available, and admit card will be also sent to applicants 15 days in advance before the date of examination। The written examination shall be held in the month of March 2022. However, the date has not been declared. Whenever the date will be declared, they will give you a mail 15 days in advance before the date of examination। The candidate have the option to answer either in Hindi or English। दो ही मोड होंगे आपके एग्जाम के, हिंदी में या इंग्लिश में। Successful candidates will be called for an oral examination for which separate communication will be sent। जिनका भी रिटन एग्जाम निकल जाता है उनको एक ओरल एग्जामिनेशन के लिए, वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। दोनों एग्जाम क्लियर होने पे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। एंड देन यू कैन एक्ट एज अ कंसल्टेंट और कस्टम ब्रोकर एंड असिस्ट द इंपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इन देयर applications and work। Point number 9 says, in case declarations and information submitted by applicant are found to be incorrect, application shall be rejected or license if issued shall be cancelled। So it is necessary कि आप जो भी information दें वो सही हो। For any query, please visit the websites cbic.gov.in and nacin.gov.in or contact your nearest customs commissionerate। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि जो भी आपको डाउट हो रहा है आप अपने नियरेस्ट कमिश्नरेट ऑफिस में जाइए, वहां पे पॉलिसी सेक्शन होगा जो कि लाइसेंस इशू करता है। आपको जो डाउट है आप वहां से क्लैरिफाई करिए। दैट विल बी द बेस्ट रिसोर्स फॉर गेटिंग योर कंफ्यूजन और क्लैरिफिकेशन सॉल्व्ड। तो ये नोटिफिकेशन इशू किया था नेसिन फरीदाबाद ने 26 अगस्त 2021 को। थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं हम CBLR का, कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन। ये रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसी के बेसिस पे आपको गवर्न किया जाएगा आपकी वर्क को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं। अभी जो रेलिवेंट पोर्शंस हैं हम उन्हें केवल पिक्चर में लेंगे, बट दिस रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। में सबसे रेलिवेंट जो पोर्शंस हैं वो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। इन्विटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics shall invite the application for conducting the examination and subsequent grant of license to act as custom broker as per Regulation 4। Now, as per Regulation 5, the conditions to be fulfilled by applicants। देखिए, कुछ कमिश्नरेट्स ने जिन्होंने अपने निकाले हैं नोटिफिकेशन, लाइक दिल्ली एंड मुंबई, बहुत ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ जो कमिश्नरेट्स हैं जैसे कि बैंगलोर हैं, आपका मुंद्रा हैं, वहाँ के नोटिफिकेशंस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं हैं। वो उन्हीं जो नोटिफिकेशन नेसिन फरीदाबाद ने इनिशियली निकाला है उसी के बेसिस पे उन्होंने फर्दर नोटिफिकेशंस निकाल के इनवाइट कर ली हैं एप्लीकेशन। So if anyone is having doubt ki what they should do, what they should not do, in case any point is not getting clarified to them, so they should follow CBLR 2018 because ये वही रेगुलेशन है, बेसिक रेगुलेशन है जिसके बेसिस पे एग्जामिनेशन एंड फर्दर इशू ऑफ द लाइसेंस डिपेंड करता है और गवर्न होता है। Regulation 5 says the applicant for the license to act as custom broker in a custom station shall, before applying to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, meet the following conditions। that first thing, he is a citizen of India। ये जो कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है और कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन है, ये कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस देने के लिए दिया जा रहा है ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स।
बाहर के सिटीजन्स के लिए अलाउड नहीं, ओनली फॉर द इंडियन पीपल दिस इज फैसिलिटी इज देयर। सेकंड पॉइंट से ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, भाई इसका माइंड सही चलता हो, प्रॉपर, ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ, लीगल थिंग्स, लीगल कॉम्प्लिकेशंस, और वो उसको अबाइड करे। ही इज नॉट एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, भाई उसके पास पैसा ही नहीं है ना ड्यूटी भरने के लिए ना ड्यूटी एश्योर करने के लिए। ही होल्ड्स आधार नंबर, जो इंडियंस उनके पास आधार होगा। ही होल्ड्स अ वैलिड पैन कार्ड। He has not been penalized for any offence under the Act, under the Customs Act, under the Central Excise Act 1944, Finance Act, Central Goods and Services Act, and Integrated Services Goods and Services Act 2017. किसी भी एक्ट में उसे penalize ना किया गया हो. He has neither been convicted by competent court for an offence nor any criminal proceeding is pending against him in any court of law. An individual, or in case of an applicant, is a firm, its partner, or in case of a company, its director or authorized employee who may handle the customs work shall be a graduate from recognized university. पहली बात तो ये है कि उन्हें graduate होना चाहिए. Second thing, possess a professional degree such as master's or equivalent degree in accounting, finance or management, CA, CS, MBA, LLM, ACMA, FCMA or diploma in custom clearance work from any institute or university recognized by government, or is having 2 years experience in transacting custom broker work as G card holder. Now जो educational qualification है, इसमें आपकी मास्टर्स क्वालिफिकेशन जो है फिनेंस और मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें MBA है, CA, CS है, LLM है, LLB नहीं है। LLM को दिया है पहले कुछ इनिशियल ईयर्स में, 2004 में LLB था, बाद में उन्होंने इसे रिप्लेस करके अपग्रेड करके LLM किया है। कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है कि भई जो हमारा MBA का डिग्री है, अगर हमारा कोरेस्पोंडेंस से है या पार्ट टाइम है या वीकेंड है, रेगुलर नहीं है, तो वो अप्रूव होगा कि नहीं होगा? तो MBA का मतलब होता है MBA, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे कोरेस्पोंडेंस हो, चाहे वीकेंड हो, चाहे कैसे भी हो, अगर आपके पास में MBA की डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम। अब कुछ लोगों को फर्दर ये डाउट होता है कि हमारा जो MBA है, हमारे कॉलेज ने हमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का दिया हुआ है डिग्री सर्टिफिकेट, हमारे पास MBA नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट क्लैरिफिकेशन है आपका अपना नियरेस्ट कस्टम्स कमिश्नरेट, क्योंकि कुछ कमिश्नरेट्स हैं, जैसे मुंद्रा कमिश्नरेट है, वो इसको वैल्यू देता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द MBA कंसिडर करते हैं। कुछ AICTE की ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कहती हैं भई ये जो MBA की डिग्री आपको दी जा रही है, जो PGDM दिया जा रहा है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू MBA। इफ योर कॉलेज इज़ सेइंग दैट, इफ योर यूनिवर्सिटी इज़ सर्टिफाइंग दैट एंड योर कस्टम्स कमिश्नरेट इज़ सैटिस्फाइड कि आपकी ये जो डिग्री है दैट इज इक्विवेलेंट टू एन MBA, देन दे कैन अलाउ यू फॉर गिविंग द एग्जाम। सो द बेस्ट रिसोर्स विल बी टू कॉन्टैक्ट योर कस्टम्स कमिश्नरेट एंड गेट अ क्लैरिफिकेशन कि आपका जो ये PGDM का डिग्री है ये इक्विवेलेंट है MBA के, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। डिप्लोमा इन कस्टम क्लियरेंस वर्क फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, कुछ इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक IIFT इज देयर, जो कि डिप्लोमा इन कस्टम क्लियरेंस वर्क कंडक्ट कराता है, और उस डिप्लोमा के बेसिस पे आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। ये होते हैं प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, प्रोफेशनल्स जो कि इस एग्जाम में डायरेक्टली अपीयर कर जाते हैं। कुछ लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं कस्टम्स ब्रोकर के अंडर में, उनका इनिशियली H कार्ड बनता है, फिर उनका एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उस एग्जाम को वो क्लियर करते हैं तो उनका एक G कार्ड बन जाता है। जब G कार्ड बनने के बाद उन्हें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, देन दे आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो उनका F कार्ड बनता है, एंड देन दे कैन वर्क एज़ अ कस्टम ब्रोकर। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स भी जब ये एग्जाम अपना क्लियर कर लेते हैं, तो उनको लाइसेंस मिलने के बाद उनको एक F कार्ड बनता है, एंड देन अपने अंडर में वो जितने चाहें G कार्ड ऑथराइज कर सकते हैं, रख सकते हैं फॉर डूइंग द वर्क, और H कार्ड G कार्ड के अंडर उन्हें असिस्ट करने के लिए वर्क करता है। ये पूरी एक हायरार्की रहती है। सेकंड पॉइंट सेज, another point says the applicant has a financial viability as evidenced by a certificate issued by a scheduled bank. शेड्यूल्ड बैंक आपका पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे कि आपके पास एक फाइनेंशियल वायबिलिटी है, क्योंकि आप ड्यूटी को हैंडल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो ड्यूटी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दे रहे हैं गवर्नमेंट को देने के लिए, वो आप हैंडल करने के लिए सशक्त हैं, सक्षम हैं कि नहीं, ये सर्टिफिकेट आपका अपना बैंक देगा आपको। और सच अदर प्रूफ एक्सेप्टेबल टू प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एज द केस में बी,
in terms of possession of asset of value not less than 5 लाख रुपीस। यही एक पॉइंट है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट जो बैंक इश्यू करता है, जिसमें वो ये कहता है कि आपकी वर्थ 5 लाख की है, 5 लाख तक की जो भी एश्योरेंस ऑफ ड्यूटी अमाउंट है या जो भी वैल्यूज है जिसको आप हैंडल करेंगे, आप 5 लाख तक की आपके पास में एसेट्स है, आप वर्थ हैं इतने के। जनरली ये जो सर्टिफिकेट बैंक इश्यू करता है, आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाइए बैंक में, उन्हें 5 लाख डिपॉजिट करिए, एफडी बनाइए, एफडी का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा और ये एफडी के अगेंस्ट बैंक आपको लिखकर सर्टिफिकेट दे देगा दैट यू हैव अ वर्थ ऑफ 5 लाख रुपीस। इन केस ऐसा आपके पास नहीं है तो दूसरा प्रूफ वो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्टेबल टू कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। कुछ कमिश्नरेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को वैल्यू देते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपने लिखवा लिया, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इनकी वर्थ है 5 लाख रुपीस की, बेस्ड ऑन योर ट्रांजैक्शन वैल्यू, बेस्ड ऑन योर बिजनेस और बेस्ड ऑन योर एसेट्स जो आप अपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज गिवन योर सर्टिफिकेट, तो दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। ये भी एक्सेप्टेंस कुछ ही कमिश्नरेट्स में है, लाइक इन मुंबई सीए का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करता है, दिल्ली कमिश्नरेट सीए के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के बारे में स्पेसिफिकली कोई बात नहीं कहता। तो ये आपके कमिश्नरेट टू कमिश्नरेट डिपेंड करता है हाउ यू ट्वीक द लॉ एंड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस कि सीए का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है या नहीं। सीधा साधा तो रास्ता यही है कि आप अपना एक फिक्स्ड डिपॉजिट बनाइए बैंक में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल बाय कस्टम्स। ना ये तो हुआ कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स और जो इंडस्ट्री पर्सन्स हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, बट गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि जो कस्टम ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं कस्टम में अंडर द ग्रुप ए, वो ऑफिसर जब रिटायर होते हैं तो वो अगर लाइसेंस लेके वर्क करना चाहें तो वो वर्क कर सकते हैं। So this point says a retired Group A officer from the Indian Revenue Services, Customs and Central Excise having a minimum of 5 years experience in Group A post shall also be eligible to apply for a license. अगर मिनिमम 5 years उन्होंने वर्क किया हुआ है तो वो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आफ्टर their retirement they can work as a customs broker and they are eligible to apply for this license. हालांकि उन्हें सब पता होता है बट स्टिल देयर आर फ्यू ऑफिशियल्स IARS जिन्होंने कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस लिया हुआ है एंड दे आर वर्किंग, सो इट्स अ गुड थिंग, they are also coming at par with the custom broker and working. Third point, the principal commissioner of customs or commissioner of customs may for the purpose of this regulation make such inquiries to verify the eligibility of applicant. वो वेरीफाई करेंगे एलिजिबिलिटी, आप अपने डिग्री देंगे सर्टिफिकेट देंगे तो उन्हें वो वेरीफाई करेंगे, एंड इफ you submit any wrong information and you get the license anyhow, and if they find in future that you have submitted wrong information then they can also cancel your license. Now regulation 6, examination of the applicant. एग्जामिनेशन जो हो रहा है एप्लीकेंट का वो रेगुलेशन 6 के अंडर में हो रहा है, और जो पब्लिक नोटिस इशू हुआ है वो भी रेगुलेशन 6 के अंडर में इशू होता है। एन एप्लीकेंट हु सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 5 shall be required to appear for a written as well as oral examination conducted by National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, for the short form NACIN, provided the applicant who has passed the examination referred to in Regulation 9 of CHLR 1984, Regulation 8 of CHLR 2004 और Regulation 6 of CBLR 2013। ये रेगुलेशन इनिशियली 1984 में आया, उस समय जो एप्लीकेशन इनवाइट करी जाती थी और एग्जामिनेशन होता था एप्लीकेंट का, वो रेगुलेशन 9 के अंडर में होता था। तो रेगुलेशन 9 1984 के रेगुलेशन में, वही अपग्रेड होके रेगुलेशन 8 हो गया 2004 के CHA रेगुलेशन में, और वही अब अपग्रेड होके रेगुलेशन 6 हो गया है कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2013 में। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस होते गए लाइसेंसिंग रेगुलेशन में, और जो ये रेगुलेशन जिनमें एग्जामिनेशन होता है एप्लीकेंट का ये भी अपग्रेड होता गया। इनिशियली फ्रॉम द रूल रेगुलेशन 9 या रूल 9 कहा जाता था इंडस्ट्री में, रेगुलेशन 9 से लेकर रेगुलेशन 8 एंड देयर आफ्टर रेगुलेशन 6 हो गया है। तब रेगुलेशन 2 कहता है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईच कैलेंडर ईयर। ये जो मार्च में एग्जामिनेशन हो रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आता है, क्वार्टर 1 जनवरी फरवरी मार्च का होता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉर व्हिच द इंटीमेशन शैल बी सेंट individually to applicants in advance before the date of examination, and result of the examination
shall be declared preferably within 1 month of the date of examination. मतलब मार्च में आपने एग्जाम दिया तो अप्रैल तक आपको रिजल्ट आ जाएगा. The applicant, third sub regulation says that the applicant who is declared successful in the written examination shall be called for an oral examination on the specified dates in the second quarter of the same calendar year. सेकंड क्वार्टर यानी कि आपका अप्रैल मई जून का जो ये सेकंड क्वार्टर होता है, इसमें आपको ओरल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा. फोर्थ पॉइंट, द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ द रिटन एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग ओरल एग्जामिनेशन. आपका रिटन और ओरल एग्जामिनेशन दोनों क्लियर होगा तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा. पॉइंट नंबर 6 says the applicant shall be allowed a minimum of 6 attempts to clear the exam. अब सिलेबस की बात करें तो सब रेगुलेशन 7 रेगुलेशन 6 का सब रेगुलेशन 7 कहता है द एग्जामिनेशन में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग: प्रिपरेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बिल ऑफ एंट्रीज, इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट के लिए एंड अदर क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स, अराइवल एंट्री एंड क्लियरेंस ऑफ वेसल, टैरिफ क्लासिफिकेशन एंड रेट्स ऑफ ड्यूटी, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स, conversion of currency, nature and description of documents to be filed with various kinds of bill of entry, shipping bill and other clearance documents, procedure for assessment and payment of duty, prohibition on import, export, examination of goods at custom station. Syllabus बहुत wide है, but we have the procedure to attempt the custom manual है, custom act 1962 है, and we also have our syllabus well defined, multiple choice questions which you can attempt on the Android app, and then you can get to know of all these concepts very easily, and बहुत ही जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप अटेम्प्ट करेंगे, नॉलेज है, यू कैन ग्रैस्प दैट नॉलेज एंड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम. बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से कुछ चीजें ग्रैस्प करी जा सकती हैं. नाउ हर कमिश्नरेट अपना अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता है बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ नेशन. तो दिल्ली कमिश्नरेट ने अपना नोटिफिकेशन निकाला. दिस पब्लिक नोटिस is there for based on the NACIN notification, invitation of applications for the written examination under regulation 6 of CBLR 2018 scheduled to be held in March 2022. जैसा कि हमने देखा कि regulation 6 CBLR 2018 का हमने regulation 6 देखा, उसी के अंडर में written examination के लिए applications invite हो रही हैं. Attention of all concerned is invited to the notice of 26 August, notice dated 26 August 2021 for the custom broker examination 2022 issued by NACIN फरीदाबाद. वो हम नोटिस ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें कि उन्होंने मंगवाया एप्लीकेशंस. फर्दर दे आर सेइंग कि एप्लीकेशंस एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म ए गिवन इन annexure 2 along with the documents given in annexure 3 are invited from Indian citizens to appear in the online written examination for issuance of license to act as custom broker under custom broker licensing regulation as amended. For working at एयर कार्गो कम्प्लेक्स इंपोर्ट शेड, ये लोकेशंस बता रही हैं जहां पे आप वर्क कर सकते हैं कस्टम लोकल लाइसेंस लेने के बाद. एयर कार्गो कम्प्लेक्स इंपोर्ट शेड, एक्सपोर्ट शेड, आईसीडी तुगलकाबाद, आईसीडी पकड़गंज दिल्ली एंड अदर आईसीडीज falling within the jurisdiction of commissioner. Basically around 15 ports हैं जहां पे आप without any further registration or intimation you can work under the Delhi Commissionerate. Second point says application in Form A along with 2 passport size photos and self-attested document on citizenship like Aadhaar, passport and voter card, your PAN card. PAN card और आधार कार्ड आपके बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सेल्फ अटेस्टेड बेसिस पे आप अपना सबमिट करिए. योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली आपकी जो मेन क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, जैसे कि MBA, CA, CS, LLM, ये आपकी मेन क्वालिफिकेशन है. इसकी आपको अगर डिग्री मिली हुई है और आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिली हुई है तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड बेसिस पे सबमिट करिए. अगर आपको डिग्री नहीं मिली हुई है, प्रोविजनल डिग्री मिली हुई है और आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं आई हुई है तो हर 6 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है आप वो सबमिट करेंगे. आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन आपने जिस बेसिस पे किया, आपका 12th का मार्कशीट एंड आपका सर्टिफिकेट एंड आपका 10th का मार्कशीट एंड आपका सर्टिफिकेट. जो 10th का सर्टिफिकेट होता है दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो.
तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी पूरी बनती है, पूरा जो एक सेट बनता है, और जिसके टॉप पे आप अपनी मेन क्वालिफिकेशन को लगाएंगे, दैट इज इफ यू आर हैविंग बीटेक एमबीए, तो आप 10th 12th बीटेक एंड एमबीए लगाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। आप उसको सेल्फ अटेस्ट करा सकते हैं। सेल्फ अटेस्ट मतलब आप अपने साइन करिए, ऊपर सेल्फ अटेस्ट लिखिए, नीचे साइन कर दीजिए, एंड दैट इज रेलिवेंट। फाइनेंशियल वायबिलिटी में आपका आ गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट या आपका सीए का सर्टिफिकेट एज एक्सेप्टेबल बाय द commissionerate, and other documents along with the prescribed fees of ₹500 paid through TR6 चालान to the Commissioner of Customs। ये TR6 चालान होता है, ये बैंक में डिपॉजिट होता है। इसका फॉर्मेट मैं शेयर कर दूंगा, आपको ये बैंक में भी मिल जाएगा। एंड देन आपको ये फिल्ड फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, आपको शेयर हो जाएगा। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फिल द TR6 चालान। फिर आप इस पे एक चालान नंबर होता है जो कि आप अपने पॉलिसी सेक्शन से कमिश्नरेट से लेंगे और रजिस्टर में नोट कर देंगे। चालान नंबर आपको मिल जाएगा, वो चालान नंबर आप TR6 चालान के ऊपर लिखेंगे। 3 कॉपीज आप उसमें सबमिट करेंगे भर के। एक कॉपी बैंक रखता है, एक कॉपी आपका आपके लिए होता है रेफरेंस के लिए, और एक कॉपी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने पॉलिसी सेक्शन में टू मार्किंग इट टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आप सबमिट करते हैं। कहाँ सबमिट करेंगे? न्यू कस्टम हाउस महिपालपुर में है, वहां पे आप सबमिट करेंगे। टू बी सबमिटेड इन पर्सन एट द सेंट्रलाइज्ड डाक सिस्टम काउंटर ग्राउंड फ्लोर इन द ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एयरपोर्ट एंड जनरल न्यू कस्टम हाउस नियर IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली 37, और बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से कैसे करेंगे? आप आए, आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट किया, आपने जो भी डाउट है आपने वो डिस्कस किया, आपने TR6 चालान भरा, एंड बाय द टाइम आपका 6 साढ़े 6 बज गया, यू आर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट इट। नेक्स्ट डे आपको आना है, आपको सबमिट करना है। इन दैट केस आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज सकते हैं, बट इफ इट इज विद इन द टाइम लिमिट, मतलब कि आप 18 नवंबर को ये चीज ना करके अगर आप इस चीज को 1 नवंबर को कर रहे हैं, देन इट इज गुड। बट अदरवाइज पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसा करिए। आप नेक्स्ट डे भी आइए और उसको सबमिट करिए इन पर्सन। एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। सपोज करिए आपका पहुंचा ही 18 नवंबर को 6:30 या 7 बजे, तो फिर वो तो तब तक 6 बजे तक तो वैसे ही ऑफिस बंद हो जाते हैं, तो दे विल नॉट एंटरटेन इट। और अगर नेक्स्ट डे मिला फिर तो सवाल ही नहीं उठता एक्सेप्ट करने का। ऐसा कुछ कमिश्नरेट में हुआ कि लोगों ने TR6 चालान भरा, उन्होंने भेजा बाय पोस्ट, बट ड्यू टू सम रीजन और द अदर TR6 चालान रेफर नहीं हो पाया उनके बाय पोस्ट जो आया उसमें, तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन फिर अब आप करते रहो, उनसे बात करते रहो, अपील करते रहो, आपकी डेट ओवर हो जाएगी, बट यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिप्लाई और आप अपीयर नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। सो इट इज द बेस्ट पार्ट इज कि आप इन पर्सन आइए। इन पर्सन आप चाहे आपका 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आप अपनी नियरेस्ट जो भी आपका कमिश्नरेट है वहाँ पे इन पर्सन जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इन पर्सन आप सबमिट करिए डाक पे। वहाँ पे आपको एक रिसीट मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन पे, वो स्टैंप लगा के आपको रिसीविंग दे देंगे, एंड देन यू हैव द एट लीस्ट यू हैव द रिसीविंग कि आपने सबमिट किया था विद इन द ड्यू डेट। डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, दे मेंशन देयर स्टेटस अलोंग विद देयर एप्लीकेशन, जो भी उन्हें फैसिलिटी मिलनी है वो उनको मिल सकती है। Point number 3 says before submitting the application, the applicant should ensure the completeness of the application, as incomplete application shall be rejected without any notice or deficiency memo issued to the applicant। वो कुछ नहीं बताएंगे और वो आपका रिजेक्ट कर देंगे अगर इनकम्प्लीट रहा तो। इसीलिए आपको एक कंसर्न्ड कंसल्टेंट की जरूरत होती है जो आपको गाइड करे, आपको एडवाइस करे कि आपको क्या चीज कैसे भरनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन ना रिजेक्ट हो एंड यू शुड गो थ्रू द एग्जाम। बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, वो 3-3 4-4 बार भी रिटन एग्जाम देते हैं, 1-1 2-2 बार वो अपना वाइवा देते हैं, बट वो क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्जाम। और कुछ लोग जिनको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है वो एक ही बार में अपना रिटन भी क्लियर कर लेते हैं, एक ही बार में अपना ओरल भी क्लियर कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किनसे गाइडेंस और एडवाइस ले रहे हैं, एंड देन इफ यू आर टेकिंग एन एक्सपर्ट एडवाइस एंड यू कैन really clear this exam in the first attempt. Now, the point number 4 says that Regulation 5 of CBLR 2018 prescribes a condition to be fulfilled by applicant which are extracted as under for information of the applicants। जैसा कि अभी हमने Regulation 5 देखा था CBLR 2018 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि should be a citizen of India, is a person of sound mind, not educated as insolvent, holds an Aadhaar number, holds a valid PAN card। Second thing, has not been penalized for any offense under the Customs Act, Central Excise Act, Finance Act, CGST Act, and IGST Act. Neither been convicted by the competent court for an offense or any criminal proceedings not pending against him in any court of law। मतलब कि आप
शरीफ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं इंडिया के, आपको कोई भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको और किसी ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्ट नहीं किया गया है, ना तो और ना ही कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है। इंडिविजुअल एप्लीकेंट है, मैंने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बारे में बता ही दिया, फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में भी रेगुलेशन 5 के अंडर में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है डिटेल में। रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेम्स ऑफ द एप्लीकेंट विल बी फाउंड एलिजिबल टू अपीयर शिल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमिश्नरेट लेटेस्ट बाय द 29 नवंबर। तो आपने इन पर्सन अपना फॉर्म सबमिट किया है, तो वही पॉलिसी सेक्शन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे आपका जो भी 2-3 पन्ने 4 पन्ने में प्रिंट होके लग जाएगा नोटिस कि कितने कौन-कौन से एप्लीकेंट हैं वो इसमें एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सीबीआईसी और नेसिम की वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस रेगुलेशन 6 के सब रेगुलेशन 7 में दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया। सिलेबस बहुत ही वाइड है, बट अगर आप उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि इम्पोर्ट हुआ गुड्स तो उसकी ड्यूटी सबमिट होनी है और इट हैज टू बी लॉ अबाइडिंग। आपका जो भी रेगुलेशन है, जो भी आपका लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंट्री का, उसको आपको मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट यही है और ये अब एक टेक्निकल एग्जाम में कन्वर्ट हो गया है। पहले ये फंक्शनल टोटली एक थ्योरेटिकल एग्जाम हुआ करता था और क्वेश्चंस आपसे वो पूछते थे एंड यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, बट नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है, चाहे आप हिंदी में अटेम्प्ट करिए, चाहे आप हिंदी में अटेम्प्ट करिए। तो उसी को इन्होंने बताया हुआ है कि द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन 2022 एज अमेंडेड शैल बी कंडक्टेड बाय नेशन इन द मंथ ऑफ March 2022 at the designated examination centers across India. Online examination, written examination will be a computer-based exam. It will be a computer-based test or computer-based exam with multiple choice questions of 2.5 hours, 1030 hours to 1300 hours. 2.5 घंटे का एग्जाम है। क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ होगा और उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ होगा। आप लैंग्वेज जो भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज। Number of questions will be 150 and time will be 2.5 hours. 2.5 hours means 150 minutes. So one question, 1 minute. Marking scheme will be +3 for each correct answer, -1 for each incorrect answers. Maximum marks 450, qualifying marks 270, 60% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट इसमें चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं और पूरा अटेम्प्ट कर देते हैं। 2019 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टेक्निकल मोड ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन फॉर द फंक्शनल कंसेप्ट, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर दिया, उनके जो सही थे उनके बेसिस पे उनको नंबर मिल गया, जो गलत थे उनके बेसिस पे नंबर नहीं कटा। लेकिन अब 2020 और 2021 में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करके जो अब ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, उनके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज कि आप जिनके लिए पूरी तरह से श्योर हैं, आप वही एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इसमें फर्दर बताया गया है कि एक डमी क्वेश्चन पेपर जिसमें करीबन 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि आपको ये पता लगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आएंगे। कई बार सिस्टम का लोड बढ़ जाता है एंड यू कैन अटेम्प्ट देम, थोड़ा स्लो रहता है। साइमल्टेनियसली आप 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो यू हैव टू मैनेज कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिला हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे आपको ज्यादा समय लग जाता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 3 घंटे में बैठ के आपको काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपका रन रेट कितना जा रहा है, आपका कितने आप मार्क्स क्वालिफाई कर ले रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कुछ एंड्रॉइड एप्स हैं जो हमने बनाई हैं एंड ऑन दोस एंड्रॉइड एप्स, इसके अंदर बहुत सारे हमने क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, जिनको आप अपीयर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपको 3 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होंगी। After you qualify your written examination, the oral examination will be held in the second quarter of the calendar year 2022. Pass percentage for qualifying in the oral examination will be 60%. तो दोनों ही examinations में 60% एक qualifying criteria है।
In case the declaration made and information submitted by the applicant are found to be incorrect at any stage, the application shall be rejected or license if issued shall be cancelled. अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या आपको अगर लाइसेंस गलती से इशू हो जाता है तो वो कैंसिल भी किया जा सकता है. So point number 8 says, as per regulations, candidate who successfully pass a written examination shall be called for the oral exam, for which separate communication will be sent. A candidate needs to pass in both the written and oral examination for issuance of license. आपको दोनों written और oral examination pass करना है license को लेने के लिए. And as per sub-regulation 6 of regulation 6 of CBLR 2018, an attempt at the written examination shall be deemed to be an attempt, and notwithstanding the subsequent disqualification or cancellation of application, the fact of appearance of the applicant at an examination will count as an attempt. So आपके attempts count होते रहेंगे जैसे जैसे आप appear करते हैं एग्जाम में. तो आपके 6 attempts हैं. तो अगर आप पढ़ के properly एग्जाम देंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं, और अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो फिर आप 6 अटेम्प्ट्स भी देंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. फर्दर इन्होंने बताया है कि आप से अप्लाई करेंगे. ये इसी दिल्ली के नोटिफिकेशन में इन्होंने जो रेफरेंस दिया है नेसिन फरीदाबाद का जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था 26 अगस्त 2021 का, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है. दैट हैज बीन मार्क्ड एज एनेक्चर 1. तो ये सेम नोटिफिकेशन है जिसको अभी हमने फर्स्ट इनिशियली देखा था. एनेक्चर 2 में बताता है ये एप्लीकेशन फॉर्म ही, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका बेसिकली आप लाइसेंस लेने के लिए जो आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं ये वो फॉर्म है, बट दिस फॉर्म इज बीइंग यूज्ड टू अप्लाई फॉर द examination also. So you have to understand this thing and you have to apply it very clearly कि आप इसमें जो भी information दें वो correct हो to the best of your knowledge. Name of the applicant, आपका नाम पूरा जो अभी आपका आधार और पैन कार्ड में लिखा हुआ है. full address of the applicant, जो भी आपका आधार एंड पैन में है. your आधार नंबर, names, permanent account number and address of each of the partners of the firm or directors of the company as the case may be in case applicant is the firm or company. आप जो एप्लीकेशन देंगे आप अपने पर्सनल नाम पे भी दे सकते हैं, आप फर्म के नाम पे भी दे सकते हैं, कंपनी के नाम पे भी दे सकते हैं. फर्म आपकी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है. कंपनी के अंदर आपके 2 डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, 2 से अधिक डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं. तो अगर आप पर्सनल नेम पे कर रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए, अपना पैन नंबर लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए. अगर आप एज अ फर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी उसके अंदर पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं कंपनी में उनका नाम और पैन नंबर लिख दीजिए. पॉइंट नंबर 5 सेज नेम एंड पैन ऑफ पार्टनर, डायरेक्टर or directors who will be actually engaged in the work of custom broker in case applicant is a firm or company. तो कंपनी के अंदर में जो आपका डायरेक्टर या पार्टनर है वो कस्टम ब्रोकर हो सकते हैं जो कि कंडक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकते हैं कि वो आपके वर्क कर रहे हो आपके फर्म में. सो बेसिकली जो इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर आपकी कंपनी एज कंपनी आप अपियर कर रहे हैं तो उनका कौन सा पार्टनर या डायरेक्टर होगा जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टम ब्रोकर वर्क के लिए. तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसका नेम एंड पैन नंबर यहाँ पे मेंशन होगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु मे बी एंगेज्ड एज द कस्टम ब्रोकर. जो कस्टम इज कंसर्न विद द कस्टम ब्रोकर, जो भी कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस ले रहा है, एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, लाइसेंस बेशक वो कंपनी या फर्म के नाम पे दे, बट दे आर कंसर्न विद द लीगल पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द लीगलिटी एंड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वर्क. तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन होगी जो भी कंसर्न पर्सन है. टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स द एप्लीकेंट हैज मेड इन द एग्जामिनेशन रेफर्ड टू इन रेगुलेशन 9. जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलेशन 9 ऑफ CHLR 1984, रेगुलेशन 8 ऑफ CHLR 2004 एंड रेगुलेशन 6 ऑफ CBLR 2013 और रेगुलेशन 6 ऑफ CBLR 2018 ये सब इक्विवेलेंट हैं. इनमें से किसी भी रेगुलेशन के अंडर आपके जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट हुए हैं वो आप यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज. करेक्ट. फिर उसके बाद ये डिक्लेरेशन है. ये डिक्लेरेशन बहुत सारे लोग खाली छोड़ देते हैं कि उन्होंने ऊपर वाला भर दिया, बट ऐसा नहीं है. उन्होंने नीचे वाला भी डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड. इस डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज और हिंदी. जिस भी कमिश्नरेट में आपका काम चल रहा है वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है. जैसे गुजरात में है तो गुजराती, पंजाब में है तो पंजाबी, साउथ में है तो कन्नड़. तो जो भी आपकी वर्किंग नॉलेज है लोकल लैंग्वेज की आप वो लिखिए. अगर आप जैसे दिल्ली या मुंबई में आपका दिल्ली में हो रहा है तो आपका आप उसमें लिखिए आई हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी दोनों मुझे आता है. या आप ज़्यादा ये लिख सकते हैं हैव एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड knowledge of English, या I have expert knowledge of English and knowledge of Hindi. तो और you can tick mark simply you have working knowledge of English as well as Hindi.
और अगर आप किसी और कमिश्नरेट में तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं भाई मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, पंजाबी भी आती है, आप वो लिख सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज की जगह पे आपने लोकल लैंग्वेज लिखा है, यू कैन जस्ट टिक। बट आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और आप अपना काम करा सकते हैं उस कमिश्नरेट में। Second point says, I have not earlier applied for a license to act as custom broker and no such application was rejected or accepted. तो आपको सीधा लिखना है कि ना तो आपने पहले कभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और ना ही आपका एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट हुआ है। You have to clearly say that I have not applied for the license early and no application was rejected. The firm or company by whom the undersigned is employed and have earlier held a custom broker licensing regulation. फर्म और कंपनी जो है उसके पास में लाइसेंस नहीं था, ना तो CHLR 1984 के अंडर में, ना CHLR 2004 के अंडर में, ना CBLR 2013 में, और ना ही वो कभी सस्पेंड और रेगुलेट हुआ था। तो आप इसमें सीधा लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। द अंडरसाइन्ड और पर्सन्स प्रपोज्ड टू बी एम्प्लॉयड बाय मी हैव नॉट बीन पेनलाइज्ड, कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और एंड द फाइनेंस एक्ट 1994। So you can just write not applicable. List of documents furnished in accordance with the Regulation 6 of Custom Broker Licensing Regulation 2018। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप अपने सारे 10th 12th आपका ग्रेजुएशन और आपका जो भी प्रोफेशनल डिग्री एग्जाम है उसका आप सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे, लाइक MBA, CA, CS, LLM जो भी है आपका, आपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फाइनेंशियल सर्टिफिकेट में आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का नंबर देंगे एंड उसको आप अटैच करेंगे। I all be hereby affirm that I have read the Custom Broker Licensing Regulation 2018, agree to abide by them, डेट लिखेंगे, साइन करेंगे एंड देन यू विल इसको TR6 चालान के साथ में आप सबमिट कर देंगे। फर्दर एक एक्सेल शीट है, ये भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं सबमिट करना। इसमें आप बकायदा इसको आप अपना एक्सेल शीट में बनाइए और उसमें आप इसको लिखिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, जो भी आपका एज पर आधार एंड पैन है, 16 डिजिट का आधार नंबर आपका जो होता है और वर्चुअल आईडी होता है उसमें डिफरेंस होता है। आधार 12 डिजिट का होता है, वर्चुअल आईडी 16 डिजिट का होता है। 16 डिजिट का आधार नंबर मांग रहा है तो वर्चुअल आईडी आप मेंशन कर दीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिए, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए एंड देन इसका प्रिंट लेके अपना 20 टू 60 किलोबाइट की जो आपकी पासपोर्ट साइज इमेज हो, फोटोग्राफ हो, आप उसको इसमें पेस्ट करके ये इन्फॉर्मेशन आप सबमिट कर दीजिए पॉलिसी सेक्शन में। कैसे सबमिट करेंगे आप अपना इसमें इसको कॉपी करिए पेन ड्राइव में और पॉलिसी सेक्शन में कंप्यूटर होता है वहाँ पे ले जाके आप इसको अपलोड करा दीजिए। ये जो आपका एक्सेल शीट है ये फॉर्मेट है, चाहे ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट हो, चाहे ये आपका फॉर्म ए का जो ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया है ये फॉर्मेट हो, चाहे तो आप इस फॉर्मेट को ऐसे ही एज सच प्रिंट कर लीजिए और इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन लगा के आप इसको सबमिट कर दीजिए, या फिर आप इसको वर्ड में लिख लीजिए, नीचे वाले को आप एक्सेल में बना लीजिए। फॉर्मेट मत चेंज करिएगा, जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्मेट बना के इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को सब फिल करके प्रिंट करके साइन करके सबमिट कर दीजिएगा। फर्दर फर्दर ये बता रहा है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 में दिल्ली कमिश्नरेट स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि अंडरटेकिंग ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100 ड्यूली नोटराइज्ड, नोटरी पब्लिक से नोटराइज हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ही इज नॉट एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ही होल्ड्स अ आधार नंबर, होल्ड्स अ वैलिड पैन कार्ड एंड नॉट बीइंग पेनलाइज्ड अंडर एनी ऑफेंस ऑफ द दीज एक्ट्स एंड नीदर बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज मैं दे दूंगा, आप शेयर कर दूंगा, कैन टेक इट। और इसको अंडरटेकिंग को आप एक स्टैम्प पेपर पे बना के 100 रुपए के उस पे ड्यूली नोटराइज करा लीजिए, पहला। दूसरा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो भी आपका हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, इसका आपको सबमिट करना तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप सबमिट कर दीजिए जैसा कि रेगुलेशन में कहा गया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, वन अटेस्टेड बाय द गेस्टेड ऑफिसर एंड अनदर बाय कस्टम ब्रोकर। अब इसमें क्या है कि जो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए वो आपको सबमिट करनी है। कहाँ-कहाँ सबमिट करनी है? एक तो आप यहाँ पे सबमिट हो रही है आपकी एक्सेल शीट में, पेस्ट होके सबमिट हो रही है, ये पॉलिसी सेक्शन में चली जाएगी। दूसरी फ़ोटो कहाँ जाएगी? दूसरी फ़ोटो आपकी ये फॉर्म ए जो आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ एनेक्सर 2 के ऊपर आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाइए और उसको आपको अटेस्ट कराना है किससे? गेस्टेड ऑफिसर से। अब जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, जो कस्टम में वर्क कर रहे हैं, आप पॉलिसी सेक्शन में गए वहाँ पे आप जिनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल गेस्टेड ऑफिसर, तो वो आपका अटेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज दे से दैट दे डू नॉट नो यू, तो जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं लाइक एमबीए, सीए, सीएस, एलएलएम, जो भी आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पास कर रहे हैं तो लाइक द आईपी यूनिवर्सिटी इज देयर आपका, एंड देन आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप इनको पास कर रहे हैं, अपना जो भी
डिग्री ले रहे हैं आप अपनी MBA की, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आपके इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। दे आर इक्विवेलेंट एज द गेस्टेड ऑफिसर्स। एंड जो जी कार्ड होल्डर्स हैं जो इस एग्जाम में 2 साल के वर्क एक्स के बाद बैठ रहे हैं, वो अपने कस्टम ब्रोकर से इसको अटेस्ट करा सकते हैं, बिकॉज़ दे विल अटेस्ट दैट ही इज़ द रियल पर्सन हू इज़ अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आप अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोज़ को सबमिट करेंगे एग्जाम में। सेकंड, आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट कर दीजिए, नोटरी करा दीजिए। और अगर आपकी गेस्टेड ऑफिसर से अच्छी जान-पहचान है, लाइक MBBS डॉक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, दे आर आल्सो गेस्टेड ऑफिसर्स, सो आप उनसे भी अटेस्ट करा सकते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एड्रेस प्रूफ, योर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप इसको अटेस्ट कराइए। फॉर द जी कार्ड होल्डर्स स्पेसिफिकली बता रहे हैं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कस्टम ब्रोकर लाइसेंस चाहिए। सर्टिफाई कौन करेगा? कस्टम ब्रोकर ही सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जी कार्ड, जो आपका जी कार्ड है उसकी कॉपी को सर्टिफाई करेगा आपका कस्टम ब्रोकर। डिटेल ईयर एंड रोल नंबर ऑफ पासिंग एग्जाम ऑफ द जी कार्ड अंडर रेगुलेशन 17 ऑफ CVLR, जो भी आपका रिजल्ट आया था जी कार्ड का, आप उसको लगाएंगे, उसको भी सर्टिफाई करेंगे। सेल्फ अटेस्ट करके करिए या फिर कस्टम ब्रोकर उन्हें अटेस्ट करे और उसे आप सबमिट करिए। दैट शुड बी ट्रू कॉपी अटेस्टेड। फॉर प्रोफेशनल्स, जो भी आपकी डिटेल्स है प्रोफेशनल डिग्री की, उसको आप सबमिट करेंगे। एंड फॉर रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि 5 साल का आपके पास वर्क है। तो बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट 5 lakhs की issued by a scheduled bank and proof acceptable to the Commissioner of Customs stating that the applicant is in possession of assets of value not less than 5 lakh rupees. So the Commissioner of Customs has to be satisfied that you have a worth of 5 lakh rupees. यहीं पर मुंबई कमिश्नरेट ने जो नोटिस इश्यू किया है, नोटिफिकेशन इश्यू किया है, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि एक सीए का सर्टिफिकेट उन्हें एक्सेप्टेबल होगा। दिल्ली का कमिश्नरेट सीए के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहता। ही सेज दैट द कमिश्नर ऑफ कस्टम शुड बी सैटिस्फाइड। तो जनरली दे गेट सैटिस्फाइड ऑन द बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। तो आप बेसिकली ये निष्कर्ष निकालिए कि दिल्ली और मुंबई के जो नोटिफिकेशन है उनमें सारी बातें कॉमन है, जो वो दोनों ही डिटेल्ड नोटिफिकेशंस हैं। 2 ही बातों का डिफरेंस आता है दिल्ली और मुंबई के नोटिफिकेशंस में, कि दिल्ली में वो सीए के सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहते हैं। मुंबई का जो नोटिफिकेशन है वो सीए का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेगा अलोंग विद द बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। सेकंड थिंग, सर्टिफिकेट ऑफ साउंड माइंड, जो आप एक इनिशियली एक एफिडेविट दे रहे हैं कि आपका साउंड माइंड है। मुंबई का कमिश्नरेट स्पेसिफिकली ये कहता है कि आपको अलग से एक गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना है दैट यू आर ऑफ साउंड माइंड। दिल्ली कमिश्नरेट ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं लगाता है, आपने सिर्फ एक अंडरटेकिंग दे दी that you are an Indian citizen and you have a sound mind and Aadhaar and PAN, तो वो भी चलेगा। So along with all these above mentioned documents, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि गेस्टेड ऑफिसर से आपको कराना है या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से कराना है, उनको आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। ओरिजिनल जब मांगा जाएगा तो आप उसे प्रोड्यूस कर देंगे एंड along with all these TR6 चालान आप इसे सबमिट कर देंगे पॉलिसी सेक्शन में। So in case any help is required, anything is required, any language is required, I will share that draft language and you can take my help and you can submit this application and qualify for your exam. Thank you.